सुबह उठ के कॉलेज जाना, कॉलेज से इंटर्नशिप जाना, इंटर्नशिप से घर आना, वर्कआउट करना, खाना बनाना, खाना खाना, पढ़ाई करना और सो जाना. This is how my life looked like sometimes. And honestly, I loved that. I loved the hustle because I chose that. I wanted to live the it girl vibes where I was focusing on my health, on my career, on my studies, and having fun at the same times. So, hello, my comeback kings and queens. This is Pearl Rathod, and today we're gonna discuss about how did I manage thousand things at once and excelled at all of it, and you can too. So, let's get to it. The most important thing that comes above all of the habits, all of the science, the methods, and everything is your mindset. If you don't have it there, you cannot get anywhere. So, think of a lotus, how through all of the mud, through the dirt, it grows into something so beautiful. It blooms like magic. Think yourself as a lotus. And no matter how difficult the situations are, no matter how much dirt there is in your life, no matter the distractions, you will bloom out in such a beautiful way that you will be so proud of yourself. So, accept that it is difficult because sitting in your bed, lying down, eating popcorn, and watching Ginny and Georgia on your phone is very easy, trust me. But getting up at 6 a.m., getting there 5 hours of internship, 4 hours of college, and still having to have some fun in your life is so hard. Accept the difficulty, sit with it, embrace the difficulty. Know that if 100 things are at the opposite side of your line, you will still come out as the best version of yourself. You will fight all those difficulties, distractions, and come out. Have the belief system. Know that it is difficult, and any which ways you're going to do it. Now that you have built the mindset that you are going to achieve your goal no matter what, you are going to do things no matter what the challenges are, we need to get to it. So सबसे पहले तो एक पेपर और पेन लेकर आओ, because if it's not in here, it's not in there. So yeah, let's get your paper and pen. ले आए. Now let's get to it. So first of all, we'll do हिसाब किताब of your time. Where is our time actually going? Because sometimes we feel like कि यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, but we don't realize कि मैं 5 घंटे इंस्टाग्राम चला रही हूँ, 2 घंटे स्नैपचैट चला रही हूँ, 1 घंटा व्हाट्सएप पे टाइम पास कर रही हूँ, और then I'll say मेरे पास तो टाइम ही नहीं है bro, I don't have any time, what to do now? So let's get your हिसाब किताब done. चेक योर फोन. हर फोन में एक डिजिटल वेलबींग ऐप होता है, एंड अगर नहीं है प्लीज़ डाउनलोड कर लो, बिकॉज knowing where you spend your time is really important before you get your time in control. So check your time. हर ऐप पे लिखो कि तुम कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. डू नॉट चीट. लास्ट वीक, लास्ट मंथ एनालाइज करो. नो योर पैटर्न्स. नो वेर एवर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम. ओके, मिल गया. नो नीड टू फील अशेम्ड, नो नीड टू फील द गिल्ट कि अब तक मैंने जो कर लिया, व्हाट्स डन इट्स डन. नाउ वी नीड टू गेट बैक ऑन ट्रैक, राइट? सो उसके बाजू में लिखो कि तुम्हें कितना टाइम उस पर स्पेंड करना चाहिए. अगर तुमको लगता है कि इंस्टाग्राम पे 30 मिनट स्पेंड करना इज ओके, देन इट्स फाइन. तुमको लगता है कि 1 घंटा तुम्हारे पास है इंस्टाग्राम पे स्पेंड करने के लिए, खर्च करने के लिए, थिंक ऑफ इट एज मनी. तो तुम्हारे पास 1 घंटा तुम खर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इट्स फाइन, इट्स योर लाइफ. तुमको कॉन्शियसली डिसीजन लेना है, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस. सो तुम बाजू में अपना आइडियल टाइम लिख लोगे कि दिस इज द टाइम दैट आई वांट टू स्पेंड ऑन दिस. तुमने लिख लिया. यू हैव द टाइम दैट यू आर करंटली स्पेंडिंग, एंड यू हैव द टाइम जो तुमको स्पेंड करना चाहते हो, जो तुम स्पेंड करना चाहते हो, राइट? सो कंपेयर दोस. नो द डिफरेंस कि तुम्हें कितना आगे जाना है, तुम्हें कितना डिफरेंसेस को कवर करना है, राइट? उसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ वेज इन विच यू कैन कंट्रोल द टाइमिंग्स, विच विल डिस्कस इन द लेटर पार्ट. नाउ द डिजिटल पार्ट ऑफ इट इज डन, बट हम पूरा टाइम सिर्फ फोन पे थोड़े स्पेंड करते हैं. वी हैव अदर थिंग्स एज वेल. सेकेंड स्टेप इज टू नोट डाउन ऑल ऑफ द कमिटमेंट्स दैट यू हैव. यू नो कि तुमको 7 से 11:30 तक कॉलेज जाना ही है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स इन दैट टाइम. सो नोट डाउन ऑल ऑफ द कमिटमेंट्स दैट यू हैव कि इतना टाइम तो तुम्हें इस चीज में स्पेंड करना ही चाहिए. दैट इज योर कमिटमेंट दैट यू हैव मेड, whether it's an internship, whether it's a college, whether it's anything that you think that it is a commitment and I cannot run from it or change the timings. Note down that. The third step is note down the timings जो तुमको लगता है कि ऐसे ही जा रहे, where you do not have any commitment, जो तुम वेस्ट करते हो, बेसिकली टाइम पास करते हो, जिसमें तुम रील स्क्रॉल करते हो, जिसमें तुम ऐसे ही वेब सीरीज देख लेते हो, वो सारे टाइम तुम नोट डाउन करोगे. Now that we have all of the time का हिसाब किताब, we know where are we spending our time, we know what all free time do we have, we know our commitment. Now we get to the second step, taking charge of your time.
नाउ दैट वी हैव डन द हिसाब किताब ऑफ द टाइम, वी हैव सीन कि हम टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, वी नीड टू एलोकेट आर टाइमिंग्स नाउ एंड वी नीड टू बिल्ड आर टाइम टेबल अगेन फ्रॉम स्क्रैच. सो हम फर्स्ट थिंग करेंगे ऑफ स्टीलिंग टाइम. आई रिमेंबर इन कॉलेज जब मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि भाई तूने तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, बिकॉज मैं कॉलेज में आती थी, इवन आई न्यू द कॉन्सेप्ट जो कॉलेज में पढ़ाते थे, बिकॉज समहाउ और द अदर प्रोफेशनल एग्जाम्स में वो पढ़ा दिए जाते थे. सो मैं अपना प्रोफेशनल एग्जाम का पढ़ती थी और आई यूज्ड टू स्लीप. Okay, don't do that if the teachers are strict, please don't do that, but if you can do it, doesn't matter. So मैं प्रोफेशनल एग्जाम का पढ़ती थी एंड इफ टीचर को लगता भी था कि ये पढ़ नहीं रही है, कुछ और करे, दे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई यूज्ड टू आंसर. तो थोड़े टाइम बाद टीचर्स ने भी मुझसे पूछना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि मेरे को आता ही है और मुझसे पूछेंगे तो मतलब नहीं, बेइज्जती तो मेरी होने नहीं वाली है. सो ट्राई टू स्टील टाइम. अगर तुमको पता है कि तुम्हारा कॉलेज में जो तुम टाइम दे रहे हो, अगर ध्यान दोगे तो भी कुछ समझ में आने वाला नहीं है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो भी कुछ मतलब का नहीं है, तुम्हें वो ऑलरेडी आता है, यूज दैट टाइम in somewhere else where you want it. Like प्रोफेशनल एग्जाम्स की पढ़ाई हो गई, तुम्हारे इंटर्नशिप की प्लानिंग हो गई, तुम्हारे अगले कोई प्रोजेक्ट है उसकी प्लानिंग हो गई, एनीथिंग दैट यू थिंक कैन बी डन सिटिंग इन द बेंच ऑफ योर क्लास, डू इट. सेकेंड थिंग इज कम्यूट का टाइम को यूज़ करो. मुंबई में एज सच बहुत सारा कम्यूट एंड बहुत सारा ट्रैवल होता था एंड मुझे लगता था मैं 1 घंटा रोज डेली का वेस्ट कर रही हूँ, 2 घंटा वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ ट्रैवलिंग में, मैं कुछ नहीं करती हूँ. बट देन आई स्टॉप्ड थिंकिंग ऑफ इट दैट एज अ वेस्ट ऑफ टाइम. I thought of it as a chance to do something on my phone. Not doom scrolling, not watching somebody else's story or reels. No. What I did was, I used to love writing poetries. So मैंने पोएट्रीज लिखना चालू कर दिया. कुछ कुछ कंसेप्ट या कुछ कुछ बुक्स जो मुझे बहुत टाइम से रीड करनी थी, मेरे दिमाग में घूम रही थी, वो मैंने रीड करना चालू कर दिया. एंड इवन कुछ कुछ जो वीडियोस होते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं, वो हम यूट्यूब पे वीडियोस कंसेप्ट देख लेते हैं, तो मैंने वो वीडियोस यूट्यूब वीडियोस देखने चालू कर दिए. सो आई इवन यूज द कम्यूट टाइमिंग. इट्स लाइक स्टीलिंग टाइम फ्रॉम कॉलेज, स्टीलिंग टाइम फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन, स्टीलिंग टाइम फ्रॉम द वर्ल्ड. जो तुमको लग रहा है वर्ल्ड तुमसे छीन रही है, दुनिया तुमसे छीन रही है, उसको तुम वापस अपना कर रहे हो, because that is your time. You will decide what you do with your time, right? So ये करना बहुत important है. Stealing time, getting those 10-15 minutes out and doing something productive, planning your day, reading the book, solving a concept, watching a YouTube video that you wanted to do, but productive, but useful. When you think कि कम्यूट के टाइम पे या फ्री टाइम पे, चलो फ्री टाइम में स्क्रॉल कर लेता हूँ या रील्स देख लेता हूँ, इट्स लाइक यू बिल्डिंग योर सेल्फ अ हैबिट कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं स्क्रॉल करूँगा, मैं रील्स देखूंगा. That is the habit you are building. But we do not want to build a habit of reel scrolling or doom scrolling. No, we do not. We want to build good habits. And how do we build that? तुम्हें बोर हो रहा है, सब कुछ करो प्रोडक्टिव, जो भी तुमको करना है, बुक रीडिंग, जो भी मैंने अभी बोला. Do not scroll reels. We do not want to build bad habits. And we definitely do want to build good habits, reading habits, writing habits. Do that. It will definitely help you. Now you have followed everything, you have started getting into pace, तुमने time blocking चालू कर दिया, you are building good habits, but there will be tough days. There will be days तुमको लगेगा what am I doing? Where am I standing? मुझसे नहीं हो रहा, I cannot do it. And it is evident, you are a human, not a robot. तुमको stress out होगा. So what we are going to do is, we are going to plan out those days as well. We are going to plan out the rest days, the reset days. Because अगर तुम consciously वो reset days नहीं लोगे ना, तो तुम्हारी body तुम naturally ही वो मांग लेगी तुमसे. Either you will fall sick or you will automatically be so drained out that you will automatically fall into those old bad habits. So we are not going to do that. We are going to plan our reset days every fortnight. जो संडे आएगा, जो 15th डे रहेगा, तब हम कुछ नहीं करेंगे, हम ट्रैक पे जाएंगे, हम कॉन्सर्ट्स पे जाएंगे, हम स्टैंड अप कॉमेडीज देखने जाएंगे, हम दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे. Everything that you wanted to do since the last 14 days, you will do it on the 15th day, because you'll have something to look up to कि तुम अपने गोल्स पे फोकस कर रहे हो. 15वें दिन तुम्हें पता है कि तुम अपनी मजे भी कर रहे हो. So have that planned out, okay? Because failing to plan is planning to fail. So we need to plan those days as well, where you will be just sitting, lying, or going on a trek with your friends and doing all the masti that you wanted to do. One thing that I've realized is there will be a lot of people around you who will be visionless. Matlab, I'm not saying
कि उन लोगों के साथ हैंग आउट करना बंद कर दो, बट समटाइम्स सबकॉन्शियसली दे विल अफेक्ट यू इन द बैक ऑफ योर माइंड कि यार ये इंसान तो इतने मज़े कर रहा है, ये इंसान तो इतनी पार्टी कर रही है, ये इंसान तो यहाँ घूमने जा रहा है, वहाँ घूमने जा रहा है, मैं तो घर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ. बट if your why, if your vision is clear, you will know why तुम घर पे पढ़ाई कर रहे हो, क्यों तुम ये रूटीन फॉलो कर रहे हो, क्यों तुम 5 घंटे अपनी घिसा के वो इंटर्नशिप पे जा रहे हो. हैव योर वाई क्लियर, हैव योर विजन क्लियर. एंड ऑनेस्टली तुम देखो, हर इंसान को कट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज एवरी पर्सन इज नॉट सेम. तुम्हें 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 5 घंटे पढ़ाई करनी है, सामने वाले को नहीं करनी होगी, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके. हैंग आउट विद देम, बट ऑन द 15th डे, जो मैंने डे बोला ना तुमको, 15वें दिन पे तुम उनके साथ हैंग आउट करो क्योंकि तुम्हें उनके साथ वाइब मैच हो रही है. बट नो दैट योर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट. डू नॉट ट्राई टू मैच इट. डू नॉट थिंक कि ये ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा है और मैं ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हूँ. नो योर वाई, क्यों जी रहे हो, तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए कि वाई यू आर लिविंग दैट लाइफ, बिकॉज यू हैव चूजन टू. बिकॉज तुम अपने आप को एक ऐसी जगह देखते हो जो जगह पहुंचने के लिए तुमको ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी. इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? नो योर वाई, मेक योर विजन क्लियर, एंड उनको भी बताओ भाई कि आई हैव दिस विजन एंड प्लीज डू नॉट ट्राई टू कन्विंस मी टू गो अदरवाइज, और दूसरे लेन में जाने के लिए डोंट कन्विंस मी. यू लिव योर लाइफ, आई एम लिविंग माई लाइफ, लेट मी लिव इट. एंड इफ दे डोंट अंडरस्टैंड, कट ऑफ करो भाई, और कुछ नहीं. और उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर वो तुमको बार बार उसके लिए परसुएट कर रहे हैं तो कट देम ऑफ. बिकॉज when people say that you are the average of the 5 people you are around, it's true. Do not take it lightly. It is very important. Subconsciously behind the scenes में बहुत सारी चीज़ें चलती है दिमाग में which we don't even realize. So yeah, it's very important to audit your circle, know what your friends think, and क्या तुम्हारी thinking उनके thinking से match भी हो रही है या नहीं, और you are just ऐसे ऐसे तुम्हारी frequency ऐसे ऐसे हो रही है, because this is instability, this is stability. The most important thing, self-reflection and the small wins. Celebrate every small win that you have had, with a web series episode, with a chocolate, with a pastry, with an outing, and acknowledge all the losses, because there is no failure. You either win or you learn. So acknowledge all the learnings. Know that यहाँ पे मेरा setback हुआ था and क्यों हुआ था. Find the reason. Try to know why it happened, and then try कि वापस ना हो. So knowing what you did, why you did, how you did is very important. That's why keep a journal, और छोटा सा even notes में भी तुम लिखो कि अगर आज मैंने ये achieve किया, ठीक है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, why was I not able to achieve it. and then तुम लोग लिखोगे ना, तुमको खुद ही शर्म आएगी कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे 5 घंटे रील स्क्रॉल कर रहा था, ये कोई रीज़न नहीं हुआ, ये तो बहाने हैं. तुमको खुद शर्म आ जाएगी और अगले दिन ना खुद ही बैठ जाओगे पढ़ाई करने. So do that. Celebrate the wins, acknowledge the setbacks, right? And setback के बाद comeback आएगा ना. अगर acknowledge करोगे setback को तभी comeback कर पाओगे. So yeah. So this was some of the tips that I shared with you about how I managed 1,000 things at once, and you can do, क्योंकि there's just one life and we want to do so many things in this small छोटी सी life. because क्या पता ये मेरा आखिरी जन्म है, क्या पता अगला जन्म ही नहीं है, क्या पता मैं अगले जन्म में चीटी बन के आ जाऊँ. So yeah, मुझे इसी जन्म में इसी ज़िंदगी में सब कुछ करना है, and this is the way you can do it. I have a lot of things like apps which helped me, or other things about getting to know yourself कि कौन सा टाइम टेबल तुम्हारे लिए वर्क करता है. A lot of things are coming on the way. So yeah, even if this video helped you a little bit, थोड़ी सी भी, so please like, share, subscribe and comment कि what are your goals and what are the things that you will achieve in this coming month, coming year. And yeah, let me know if you have any doubts, any questions, कुछ भी तुम्हें मेरी help चाहिए, let me know in the comment section. I am here to help you, and thank you so much. Please subscribe to my channel. Bye. Toodles.